بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ آج کے پروگرام میں شامل ہے آئیٹیل کہاں، کس ملک اور کس ٹائم لے جا رہا ہے۔ دوسری خبر، آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو باہر سے آنے والے موبائل فون ہیں ان کی مدت کتنی کر دی گئی ہے بغیر پی ٹی اے کرائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی جانب۔ پاکستان میں معروف چائنیز برانڈ آئیٹیل، جس کے سربراہ ذیشان یوسف ہیں، سی او، انہوں نے جو پاکستان میں ایک ڈیل کے نتیجے میں عمرے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ عمرہ کپل کے لیے ہے، اور اس کا آغاز 7 تاریخ سے ایک ڈیل جس میں 5,000 پیس کی خریداری پر کپل کا عمرہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی ڈیل کا آغاز 7 تاریخ سے کر دیا گیا ہے، اور آپ خریداری کریں اور عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ مسٹر اینڈ مسز یا جو بھی آپ سمجھیں، 2 عمرے اس میں انکلوڈ ہیں ایک ڈیل میں۔ اس ڈیل اس سے قبل ایک بڑے عرصے سے عمرے کی سعادت کے لیے کوئی گروپ جانے کے لیے تیاری نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تو آئیٹیل نے ابتدا کی اور عمرے کی سعادت کے لیے ڈیلرز یا ان کے اہل خانہ سمیت ایک ڈیل کا اعلان کیا، جس کے تحت 3500 پیس میوزک 400 اور 1500 400 پرو کے خریداری پر آپ جو ہے وہ عمرے کی سعادت مسٹر اینڈ مسز یا باپ بیٹے یا جو بھی آپ 2 شخص دو ساتھ جا سکتے ہیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک روم انہوں نے 2 پرسن کا ایک ڈیل کے نتیجے میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ایک آغاز شروع ہو چکا۔ یہ اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی کمپنیز عمرے کی سعادت کے لیے بڑے بڑے گروپ کو لے کے جاتی تھیں، مگر وہ وقت اور تھا، اور آج کرونا کی وبا نے دنیا میں ایک اپنا سسٹم بنا دیا جس کے تحت بہت سارے معاملات جو ہونے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ جو غیر ملکی دورے تقریباً ختم ہونے کے قریب آ گئے۔ الحمدللہ ان دنوں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ملک کھلتے جا رہے ہیں، سرحدیں کھولی جا رہی ہیں، فلائٹیں شروع کی جا رہی ہیں۔ اس میں فائدہ ہے کہ لوگ ایک جو اس فیلڈ سے وابستہ تھے تقریباً وہ بڑی تعداد میں بے روزگار ہو گئے تھے، واپس اب بحال ہونا شروع ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں 4 ان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، ان کی مال سے خریداری کر کے آپ عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور 2 عمرے ملیں گے ایک ڈیل کے نتیجے میں۔ اس کے ساتھ ذیشان یوسف کا عمرے کے لیے جو زائرین جائیں گے ان کے لیے خصوصی انتظامات اور ایک اس کے لیے سہولتوں کا ایک بڑے پیمانے پہ دیے جانے کے امکان ہیں اس دورے میں۔ یہ دورہ وہ یادگار بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک عرصے بعد یہ دورہ کرایا جا رہا ہے آئیٹیل کا، جو عمرے کے لیے کوئی بھی گروپ پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے زائد نہیں جا سکا ہے۔ تو یہ ایک بڑے خوش خبری ہے ہمارے ڈیلرز کے لیے کہ آئیٹیل اپنے ڈیلرز کو، ایم ڈی کو لے کے عمرے کی سعادت پہ جا رہا ہے۔ وہیں آپ کو یہ بھی خبر بریک کرتا چلوں کہ آئیٹیل کی ڈیل کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا دورہ ترکی جو جانے کے لیے تقریباً تیار تھا، اس کے کاغذات، اس میں پاسپورٹ بھی حاصل کر لیے گئے تھے، لیکن ترکی کی جو نئی پالیسی ہے اس کے تحت بہت ساری پابندیاں لگ چکی ہیں، اس میں بائیو میٹرک ہے، تو ایک لمبا پروسیجر جو ہے اس کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو دقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو دورہ باکو میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور باکو اس مہینے کی 16 مارچ کو فلائٹ تقریباً جانے کے امکان ہیں، بلکہ یقین ہے کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ
जो डीलर जाना चाहेंगे तुर्की के दौरे में, जो सेलेक्ट हुए हुए हैं, वो बाकू जाएंगे। और ये दौरा बाकू का एक अच्छा दौरा इस लिहाज से है कि इसमें डायरेक्ट फ़्लाइट है। और ये भी ख़बर देता चलूँ कि उस दिन 2 जगह से फ़्लाइटें जाएंगी, एक कराची और एक लाहौर से। और 2 जहाज़, यानी मकसद क्या रहेगा, लाहौर का भी जो जहाज़ जाएगा वो भी जैम पैक्ड है, यानी जितने डीलर्स हैं उन्हीं जहाज़ पे वही सफ़र करेंगे। इसी तरह कराची के भी डीलर्स उसके ज़रिए सफ़र करेंगे। तो देखना ये है कि ये दौरा किस तरह और कितनी देर यादगार के तौर पे याद रखा जाएगा। आईटेल के पहला दौरा होगा गैर मुल्की जो ये कराया जाएगा। तो यहाँ आपको बताता चलूँ 2 दौरे हैं, एक बाकू का है और एक उम्रे का। ये भी आपको इत्तला उम्रे पे देता चलूँ कि रमज़ान के 2 दिन कबल ये दौरा शुरू कर दिया जाएगा उम्रे का, ताकि रमज़ान के इब्तिदाई दिन सऊदी अरब में आप इबादत और ज़ियारतों में गुजार सकें। तो ये खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जो उम्रे की सआदत हासिल करते हैं, और उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो तुर्की जा के थक गए थे, अब बाकू जाना चाहते थे, वो वहाँ जा सकते हैं इस नई डील के नज़रिए। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और ये हर साल मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर में हकूक़ निस्वा के लिए बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बड़ी तकारीरें की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पे दुनिया के कई ममालिक ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम रखे हुए हैं। हम इस बहस में नहीं पड़ते, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है वो देखिए। हमारे मुल्क में भी अब जहालत माजरत के साथ, पहले जो हमारी तारीख़ बताती है कि ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और दीगर, वो जब इस्लाम नहीं आया था उससे कबल जो लड़कियां होती थी उन्हें दफन कर दिया जाता था या मार दिया जाता। हिंदुस्तान में आज भी ये रीत कायम है और लड़की होने पे जो है वो उसको कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। गुज़िश्ता दिनों एक ऐसे ही वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया जब एक बाप ने अपनी बेटी को, पहली बेटी पैदा होने के वजह से 5 रोज़ा बच्ची को गोलियां मारकर हलाक कर दिया, शहीद कर दिया देखा जाए तो हमारे यहाँ मसला ये है ख़वातीन का। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, औरत यानी लड़की जब होती है वो माँ की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है। आपके कई, जब कोई साथी नहीं होता तो आपकी ज़ोजा आपके साथ होती है। जब कोई आपको पैदाइश से लेके ऊपर तक आपकी तरबियत, आपको परवरिश करता है, वो माँ की शक्ल में होती है, आपकी भाभी की शक्ल में होती है, आपकी साली की शक्ल में होती है, आपकी जो सबसे ज़्यादा चहीती चीज़ होती है बेटी। जो अक्सर लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि लड़के बेवफा होते हैं और लड़की जो है वफ़ादार होती है अपने माँ बाप से। मैं अपनी ज़ाती बात करूं कि मुझे मेरी मन्नतें, मेरी दुआओं से मेरे यहाँ अल्लाह ने लड़की दी। मेरे लड़कों के मुकाबले में अपनी लड़की सबसे ज़्यादा प्यारी है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी बेटी भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। औलाद जो है उन लोगों के मुकाबले में हम खुशकिस्मत हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो परेशानी, ज़हनी कर्ब से गुज़रते हैं। तो आप अपनी औलाद में अगर लड़की होती है उसको बेहतर तरबियत दें, उसके मामलात को अच्छा करें, उसके मामलात के साथ बेहतरी की तरफ ले जाएं, तो उसमें जो है और मज़ीद बेहतरी होने के इम्कान हैं। आपको तरक्की मिल सकती है दुआओं से और मज़ीद आगे की तरफ जा सकते हैं। तो आज का दिन हमेशा आप यादगार के दिन के तौर पे इस तरह मनाएं कि औरत नस्वा जो है उसको मदद दे। पाकिस्तान में पीटीए की पाबंदी के बायस जो मोबाइल फ़ोन बाहर से आते थे वो किसी भी शक्ल में आए, स्मगल की शक्ल में आए या दस्ती सामान की शक्ल में लोग लेके आए, वो 59 डेज़ तक काम करते रहते थे पाकिस्तान में। अब हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की जो पाकिस्तान में एंट्री करते हैं उनके लिए एक अच्छी पेशकश कर दी है। उसके टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है और वो
4 महीने यानी 120 दिन के ऊपर उसको ले गए हैं। पहले 59 डेज था, अब 120 दिन कर दिया गया है। आप मोबाइल फ़ोन जो है बाहर से लाते हैं, उसको आप रजिस्टर कराने के लिए आपके पास मोहलत जो है वो 4 महीने की कर दी गई है। ये एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इत्तला है वो ये भी हैं कि इसमें पीटीए, एफआईए को भी इंक्लूड कर दिया गया है। आप जो सिम इस्तेमाल करेंगे वो उसी के साथ फिक्स होने के इम्कान है आपके डेटा उसमें जाने का। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि गैर मुल्की जो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, अगर मिसाल के तौर पे 30 दिन के लिए आए तो 1 महीना आपने इस्तेमाल सिम कर ली, उसके बाद वापस चले गए। अगर आप 2-4 महीने बाद आते हैं तो वहीं से 1 महीने के बाद वाला पीरियड आपका शुरू हो जाएगा, जो 4 महीने तक आपको उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि स्मगल बढ़ेगी। पीटीए ने एफआईए को और इस हुकूमत ने पीटीए एफआईए को इससे लिंक कर दिया है, वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। अब देखना ये है कौन कामयाब होता है, स्मगलर कामयाब होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कामयाब होते हैं, या हुकूमत की पॉलिसी कामयाब होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।